Assalamu alaikum. In this video, I am going to discuss LASCO test which was held in Karachi Center on 25 October 2020, and this test was conducted by National Testing Service. Actually, this video consists of two parts, technical and general portion. General portion further contains Pak study, Islamic study, IT and current affairs MCQs. So first of all, I am going to discuss technical portion. First question is which of the following is an impulse turbine? Pelton wheel. Pelton wheel is a type of an impulse turbine and it is used for high head. Which of the following does not store energy in chemical form? Solar energy does not store energy in chemical form. Basically, solar energy is the energy due to the light of the sun. Digital circuits has which characteristics? Two characteristics, two states, 0 and 1. स्पिलवेज आर टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम रेजरवायर. जब रेजरवायर हमारे पास भर जाता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्पिलवेज के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है वापस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. सिंक्रोनस मोटर में जो कि ऑसिलेटिंग टॉर्क होता है तो इसको हम मेड करते हैं सेल्फ स्टार्टिंग बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग. डैम्पर वाइंडिंग से इसको पहले स्टार्ट करते हैं एज ए इंडक्शन मोटर. जब इसकी जो स्पीड है रोटर की वो अप्रोच कर जाती है सिंक्रोनस स्पीड पे देन हम क्या करते हैं कि फील्ड एक्साइटेशन को ऑन कर देते हैं जिससे वो क्या होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने आता है इंटरलॉक होती है. इंटरलॉक से ये देन एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करते हैं. Next is ideal voltage source has constant voltage and variable current. आइडियल वोल्टेज सोर्स में कांस्टेंट वोल्टेज होता है चाहे आप करंट जो है उसको वेरी करें लेकिन जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज करंट सेंसिटिव. PMMC इज द करंट सेंसिटिव डिवाइस, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. जब करंट पास होता है कॉइल से देन इट विल oppose the magnet, okay, then it will rotate to the direction. Next is potentiometer is a deflecting and analog both. Potentiometer is a इसका आंसर क्या होगा both होगा, deflecting भी है और analog भी है. The next question is total of the electric flux out of a closed surface is equal to the charge enclosed is divided by the permittivity. It's called the Gauss's law. Next is which of the following does not affect thermal efficiency of thermal power plant? Alternator. Alternator is does not affect the thermal efficiency. It's affect the overall efficiency. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है thermal efficiency. जो अल्टरनेटर टरबाइन के पीछे पीछे जितनी भी चीजें हैं वो सब इफेक्ट करती हैं थर्मल एफिशिएंसी इन थर्मल पावर प्लांट. Piezoelectric effect is the opposite of converse piezoelectric effect or lead zirconium titanate PZT. So piezoelectric effect का जो opposite क्या है वो है converse piezoelectric field. Next is electric field intensity is a gradient of electric potential. Gradient of electric potential is equal to gradient of electric potential. This is vector quantity, this is not a vector quantity. So gradient of potential is equal to electric field. By increasing voltage by breakdown voltage in capacitor, what will happen? Dielectric will be conductor. जब breakdown voltage आ जाएंगे तो dielectric क्या कर स्टार्ट कर देगा, उसके जो bonds होंगे वो टूट जाएंगे और जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन होल पे, देन ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट इज सुपर कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सुपर कैपेसिटर जो है एनर्जी किसमें स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में. नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म विद 4 यूनिट हैव द मैक्सिमम वैल्यू देन द व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू. सो एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म की? इसकी होती है हाफ 4/2 इज द एवरेज वैल्यू. सो 2 इज द करेक्ट आंसर. और इसकी जो RMS वैल्यू होती है, RMS जो होता है वो होता है जी इज इक्वल टू
मैक्सिमम ओवर √3। ये हमारे पास RMS वैल्यू होती है ट्राइंगुलर वेवफॉर्म की, और जो एवरेज होती है वो हाफ होती है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। P injection diode behaves as a variable resistance. P injection diode is a non-linear device. ठीक है, जब इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस है जीरो हो जाती है, जब इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है हाई हो जाती है। सो इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। आइसोलेटर स्विच इज ए नो लोड ऑपरेटेड स्विच, क्योंकि आइसोलेटर में यूज नहीं होता क्वंचिंग मीडियम, सर्किट ब्रेकर में होता है। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली ऑन लोड पे होता है और आइसोलेटर क्या होता है, नो लोड पे। ठीक है, नो लोड ऑपरेटेड स्विच है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर हैव कोवेलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये जो इनकी वैलेंसी 4 होती है। सो इट इज मेड कोवेलेंट बॉन्ड्स। Next is there is a capacitor in feedback path of operation amplifier, then it is a integrator. Integrator होगा। Next is question, no load and full load voltage were given and current was given, then what will be the resistance? और resistance क्या होगी, V at full load divided by जो करंट है। नो लोड पे तो मेरे ख्याल करंट नहीं होगा, क्योंकि लोड ही नहीं है तो करंट नहीं है। फुल लोड पे जो करंट होगा, तो इसलिए हम जो वोल्टेज भी है फुल लोड वाले यूज करेंगे। तो रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, R इज इक्वल टू V फुल लोड डिवाइडेड बाय करंट। नेक्स्ट इज ए सर्किट ब्रेकर व्हेन कंडक्ट्स ब्रेक देन इट्स अपीयर द स्ट्राइकिंग वोल्टेज। जब सर्किट ब्रेकर ब्रेक्स होता है और जो जब आर्क स्टार्ट होती है, तो देन जो वोल्टेज अपीयर्स होते हैं इज कॉल्ड द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और जब और क्लोज हो जाती है देन वो जो दोबारा अपीयर होते हैं वोल्टेज नॉर्मल, विच इज कॉल्ड द रिकवरी वोल्टेज। आर के स्टार्ट पे रिस्ट्राइकिंग और आर के एंड पे रिकवरी, ये याद कर लेंगे। When length of the arc increases, resistance will increase. आर्क लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ। नेक्स्ट इज MVA। MVA इज डबल, ठीक है, KV इज हाफ, देन PU इम्पीडेंस विल बी 8 टाइम्स। कैसे, MVA डबल कर दिया और इधर से हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 2 कर दो, इधर से हाफ करेंगे 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट 60 हर्ट्ज मोटर कैन हैव मैक्सिमम स्पीड। तो 60 हर्ट्ज फॉर मैक्सिमम स्पीड पोल्स क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सो 2 को 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3600। उस मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, 3600 RPM। तो पोल्स की वैल्यू फॉर मैक्सिमम स्पीड 2 होती है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, BJT with a single source was given and region of operation was asked। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन हमने सर्किट को देखना है, अगर तो इमीटर जंक्शन भी फॉरवर्ड है और जो हमारे पास कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड है, देन क्या होगा, सैचुरेशन एज ए स्विच काम करेगा। अगर दोनों रिवर्स हैं तो कट ऑफ एज ए स्विच काम करेगा। अगर एक मतलब इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड है और जो कलेक्टर जंक्शन रिवर्स है, देन एक्टिव। If emitter junction is reverse and collector junction is forward, then it will work as a inverted। अब सर्किट को देख के हमने बताना है कि कौन सा रीजन ऑफ ऑपरेशन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SLD was given single line diagram and what will be the admittance matrix। so admittance matrix क्या होगी, सिंगल लाइन डायग्राम हमें गिवन है। तो लेट्स सपोज ये बस 1 है, ये बस 2 है, इसको बस 1 कह लो, इसको 2 कह लो। इनके दरमियान जो एडमिटेंस है, ठीक है, वाई एलिमेंट वो क्या है, कोई भी वैल्यू होगी। तो इसके साथ बाकी भी जो बसेस कनेक्ट हैं इन लाइन के साथ। सो हमने फाइंड करना है फर्स्ट एलिमेंट A11 मैट्रिक्स का। तो ये क्या होगा कि इस बस 1 के साथ जितनी भी एडमिटेंस कनेक्टेड है ना, उन सब का हमने लेना सम, तो वो आ जाएगी A11। अब A12 कैसे आएगा, A12 आएगा जो बस 1 और बस 2 के दरमियान जो एडमिटेंस मौजूद है ना, उसका ले लो माइनस, तो वो हमारे पास A12 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी थी।
Next is RLC circuit was given impedance was to be found at resonance. So impedance क्या होगी at resonance? It will be the resistance, because at resonance क्या होता है हमारे पास XC is equal to होता है XL. Next is for fuse wire current 6 ampere and radius हमारे पास कितना है 0.6 है were given, and then radius in millimeter was to be found at some other given current 2 ampere. So and other current पे हमने find करना, तो इसका formula क्या होता है I1 जो होता है fuse current is equal to diameter का 3/2 होता है, इसी तरह I2 होता है D2 का 3/2. तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन बन गई. I1 हमारे पास गिवन है 6 एम्पेयर है और I2 हमारे पास क्या है 2 एम्पेयर है. तो D1 भी गिवन है 0.6, हमने यहाँ से D2 फाइंड करना है. सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और यहाँ से D2 की जो वैल्यू है वो निकल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर गिवन है, हमें वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, रेवोल्यूशंस एंड आवर्स वर आल्सो गिवन फॉर 6 पोल एसी मोटर. देन व्हाट विल बी द पावर फैक्टर? सो यहाँ से पहले किलोवाट आवर निकालो, वो क्या होता है रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर. यहाँ से किलोवाट आवर आ जाएंगे, फिर किलोवाट निकालना है, किलोवाट आवर को आवर से डिवाइड करो, किलोवाट आ जाएंगे. देन पावर फैक्टर विल बी किलोवाट ओवर VI, अपेरेंट पावर जो वोल्टेज करंट हमें गिवन था. Simple question. Next is revolutions per kilowatt are given, voltage current also given, power factor were also given. Then for 6 pole AC motor and number of revolutions is also given. So what will be the hours? So पहले हमने क्या निकालना है kilowatt hours. The number of revolutions divided by revolution per kilowatt hour, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था. देर हमने निकालना है किलोवाट, तो किलोवाट इज इक्वल टू V1 cos थीटा इज एक्टिव पावर निकालनी है, apparent पावर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर. देन आवर्स निकालने हैं, किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय किलोवाट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज RLC सीरीज सर्किट वाज गिवन एंड वाज आस्क्ड व्हिच फिल्टर इज इट? सो बैंड पास, इट इज ए बैंड पास filter. L, C and R is the series, so it will be the band pass. Next question is a series circuit with one EMF and 2 volt draws was given and draw between two open points VAB was to be found. So circle like ये हमारे पास EMF है, ये हमारे पास आ गई resistance, ये हमारे पास A point है और यहाँ पे हमारे पास B है. This is A, this is B. सो वोल्टेज जो हमारे पास ये ओपन सर्किट है, जो वोल्टेज EMF के क्रॉस है, यहाँ पे EMF है 1 वोल्ट है, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे ओपन सर्किट, ये भी क्या होंगे 1 वोल्ट. सो 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ये वोल्ट ड्रॉप काउंट नहीं होगा क्योंकि करंट तो गुजर नहीं रहा. सो 1 वोल्ट जो यहाँ पे है EMF है, यहाँ ओपन सर्किट पे भी वही होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द लोड फैक्टर? तो लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज डिमांड ओवर मैक्सिमम डिमांड. ये फॉर्मूला सिंपल सा लगा के हमने फाइंड करना था लोड फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज RLC circuit was given, then what will be the time constant? So time constant हमने फाइंड करना था. टाइम कांस्टेंट क्या होता है? LC, ये जो सर्किट होता है RL उसका होता है L ओवर R, और जो RC का होता है वो होता है जी CR. तो इन दोनों का क्या लेना था हमने? मल्टीप्लिकेशन लेके टाइम कांस्टेंट फाइंड करना था. इट इज़ ये कन्फर्म नहीं है, ये आप देख लेना कि RLC सर्किट गिवन है तो उसका टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करें. नेक्स्ट इज ए सर्किट विद 4 ब्रांच करंट्स I1, I2, I3 and 4 at a single node. 3 करंट वर गिवन, व्हाट विल बी द करंट इन द 4th ब्रांच? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, KVL लगाना है यहाँ पे. तो ये हमारे पास 4 करंट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास I1 है, ये I2 है और I3 है, ये I4 है. तो I1 is equal to I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. तो यहाँ से I4 निकालो, I1 plus I2 minus I3 is equal to I4. सिंपल KVL रूल है हमारे पास, ये प्लस है.
Next is a circuit of combination of series parallel resistance with voltage source was given, then what will be the power. So यहाँ से आपने अगर हम बनाते हैं इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई स्केयर ओवर आर. सो आई हम फाइंड कर लेंगे वी ओवर आर. अगर हम वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज की सीरीज में लगती तो फिर ये वाला फॉर्मूला. अगर हम जो है वोल्टेज के पैरेलल लगाते हैं रेजिस्टेंस आफ्टर इक्विवेलेंट, तो फिर ये वाला फॉर्मूला. तो ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं सिंपल. नेक्स्ट इज question, voltage and power of a circuit having resistance and voltage source were given, then what will be the resistance. So यहाँ से आप क्या होता है, P is equal to होता है V square over R. यहाँ से resistance फाइंड कर लो V square over P. V भी given है, P भी given है, हमने R फाइंड करना है. Next is values of inductance and voltage source were given, and then what will be the value of inductive reactance. So inductive reactance क्या होता है 2 pi FL, और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो इक्वल टू V ओवर I. So next same question, value of capacitance and current source were given, then what will be the capacitive reactance. So capacitive reactance क्या होता है, XC is equal to 1 over 2 pi FC, and XC is also equal to V over I. Next is one numerical is related to find reluctance. So reluctance का फॉर्मूला क्या होता है, reluctance होता है L over mu A length over mu multiplied by area is equal to also equal to ampere turns divided by phi. Phi is the flux. So जो सा मर्जी फॉर्मूला यूज करो, यहाँ से हमें निकालनी है रिलक्टेंस. So mu is equal to 4 multiplied by y multiplied by 10 is power minus 7. Next is RLC circuit given, voltage across capacitor and inductor given, then source voltage. Source voltage क्या होता है, वी आर स्केयर प्लस वी एल स्केयर माइनस वी स्केयर होल का अंडर रूट. तो यहाँ पे अगर वी आर गिवन नहीं है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के वी एस निकाल. तो नेक्स्ट इज आर एल सी सर्किट गिवन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर रूट. आर एल सी सर्किट वाज गिवन, देन करंट वाज फाउंड. करंट क्या होता है आई ओवर इक्वल टू वी ओवर जी. यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें पुट करेंगे तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू आ जाएगी. एनर्जी स्टोर्ड इन ए सर्किट एट 1 सीमन इज 0. इंडक्टेंस जो सीमन जो बेसिकली कंडक्टेंस का यूनिट है, और कंडक्टेंस इज अ रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस में एनर्जी स्टोर नहीं होती, रेजिस्टेंस में एनर्जी डेसिपेट होती है. सो एनर्जी स्टोर्ड इज 0. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी इन टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द करंट. सो वोल्टेज क्या होता है I इंटू आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. यहाँ से हमने फाइंड करना था आई इज इक्वल टू वी ओवर टोटल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्वेश्चन अबाउट थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्टन इक्विवेलेंट. 2 क्वेश्चन थे, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट के बारे में था, एक था नॉर्टन इक्विवेलेंट. सो थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज ऑफ आर थेवेनिन रेजिस्टेंस. वी थेवेनिन क्या होता है, वी थेवेनिन होता है जी वोल्टेज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल, लोड ओपन टर्मिनल इस, ये हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉर्टन जो होता है वो होता है करंट सोर्स इन पैरेलल विद द आर थेवेनिन. सो करंट जो होता है बेसिकली आई थेवेनिन, वो होता है लोड की जो रेजिस्टेंस है अगर उसको शॉर्ट करें जो, देन उसके जो करंट पास हो रहा होगा वो क्या होगा आई थेवेनिन. ये हमारे पास आ जाएगा आर थेवेनिन. सिंपल सर्किट. नेक्स्ट इज LC circuit and source voltage was given, we have to find inductance. हमने क्या फाइंड करना था, इंडक्टेंस फाइंड करना था. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टेंस क्या है XL ओवर 2 पाई FL. तो Z हमने क्या निकाला XL माइनस XC इज इक्वल टू V ओवर I होगा, और XL की जो वैल्यू आ जाएगी V ओवर I प्लस XC.
यहाँ से एक्सएल निकालेंगे और एक्सएल से यहाँ से हम निकालेंगे इंडक्टेंस। नेक्स्ट इज इन हाइड्रो पावर प्लांट वॉल्यूम हेड एंड एफिशिएंसी वाज गिवन, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल। सबसे पहले हम क्या करें, वेट ऑफ द वाटर फाइंड करेंगे। वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर which is 1000 kilogram per meter cube. So electric energy stored will be available will be weight of the water multiplied by head multiplied by efficiency. यहाँ से हमने निकाल लेना था। Next is a power factor correction from 0.8 to 0.98. The capacitor value will be required. Cos theta 1 given है 0.8, cos theta 2 0.98. यहाँ से हमने theta 1 निकालना which is equal to cos inverse 0.8, then theta 2 is equal to cos inverse 0.98. तो यहाँ से हमने कैपेसिटर वैल्यू जो है इन kVAR निकालनी थी, P जो एक्टिव पावर है इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। तो ये जो वैल्यू आनी थी वो कैपेसिटर की वैल्यू थी, सिंपल। नेक्स्ट इज 2 वाट मीटर सर्किट वाज गिवन, वी हैव टू फाइंड पावर लॉस। सबसे पहले हमने फाइंड किया टोटल पावर टू द लोड W1 प्लस W2, और जो लॉस होगा इनपुट माइनस W1 प्लस W2। नेक्स्ट इज द जनरल पोर्शन। सो जनरल पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद डैम वाज इनॉग्रेटेड बाय इमरान खान। Next is which Chinese electric company has proposed for time to buy 66% shares of K Electric, Shanghai Electric? It is not a confirm. Next is Haran Desert is in Balochistan. Next is budget session 2019-20 was chaired by Asad Kaisar. Next is when MAO College was established, 1877. अच्छा, जो स्कूल बना था वो 1875 में बना था और जो कॉलेज है वो 1877, फिर आगे जाके 1920 में 1920 में ये क्या बन गई थी, यूनिवर्सिटी बन गई थी। इंदस वाटर ट्रीटी इन विच ईयर 1960 में हुआ था ये इंदस वाटर ट्रीटी, जो कि जिसमें 3 दरिया जो है पाकिस्तान के पास और 3 दरिया जो उनके पास इंडिया के पास। Next question is which new department has been established for locust control is Department of Plant Protection. Plant Protection. Next is basis of Islam is Quran and Sunnah. Hazrat Aisha is the daughter of Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Next is Allah says it is for me and I will reward myself. This is for fasting. Fast के लिए, रोजे के लिए कहा था। Next is a function in x and y variable with limits were given and area was to find. So area क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास लिमिट a to b, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसको देखो एरिया यहाँ पे फाइंड कर लो। एरिया इज द इंटीग्रेशन ऑफ f of x सॉल्व बाय डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स मिली होती है a into b। Next in star topology, all computer connected to central point is called hub. Next is which of the following does not affect speed of computer's monitor? Line formed by 2 points is called the region line segment. ये हमारे पास लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट्स को जो कनेक्ट करती है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज जिक्र ऑफ नमाज जनाजा इन विच सूरा, ये मुझे नहीं मिला, ये आप फाइंड करके ना नीचे कमेंट करें। Next is the minimum number of rows and columns in MS Word document is 1 and 1. एग्जाम विडा से आया था ये क्वेश्चंस। That's all from this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो नीचे अपना जो है कमेंट सेक्शन में ईमेल एड्रेस अपना लिखें, मैं आपको स्लाइड्स जो है उस ईमेल एड्रेस पे भेज दूँगा।